ನಾನು ಕೂತಾಗ ಒಂದು 2 शादी वाला बंदा नहीं है, फिर पहले आ गई है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मौके पर हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी का सानिध्य हमें मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय जयराम रमेश जी हमारे बीच मौजूद हैं। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भरत सिंह माधव सिंह सोलंकी जी हमारे बीच। बजने वाला है। समाज शास्त्र में स्वच्छता विषय को शामिल करने की एक मुहिम छेड़ी है और ये मुहिम का जो सूत्रपात हो रहा है वो यहाँ मावलंकर हॉल से हो रहा है। पूरे देश के समाज शास्त्र समझते हुए क्या समाज शास्त्र के विषय में स्वच्छता को शामिल कर दिया जाए, किया जाए तो कैसे, इसी पर विचार मंथन के लिए ये सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ मावलंकर हॉल में आयोजित किया गया है। मैं गुजारिश अपने अतिथियों से करूंगी कि कृपया अब तैयार हो जाइए। Night soil toilets from another age with their bare hands. Surabhbaj public to take them away from this occupation and to bring them in the mainstream of the utopian thinking which you have in mind. It is not going to happen in this country. But today, the perseverance of this Gandhi disciple has led to the installation of no less. In India's holy city of Varanasi, a nightly prayer ritual mesmerizes visitors. It takes place on the banks of the Ganga, also known as Ganges, Hinduism's most sacred river running through the country like a jugular vein. For thousands of years, they and their untouchable ancestors have had no other life option but the lowest of the low caste like these women. He recalls a defining moment in his life when he saw an entire community ignore an untouchable boy who had been attacked by. My name is Dolly Parwana. Past. He takes them on high-profile, made-for-media excursions around India and the world.
की मुहिम को लेकर आया है सुलभ, और इसका ही एक नमूना हमने देखा और कुछ विशिष्ट अतिथि जिनका आशीर्वाद। लेकिन आज वो यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री माननीय जयराम रमेश जी मौजूद हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप सभी यहाँ मंच पर पधारें। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भरत सिंह माधव सिंह। आज एक ऐसा इतिहास यहाँ से बनने वाला है जो कि सोशियोलॉजी में किस प्रकार से स्वच्छता को शामिल कर लिया जाए, इस विषय पर विचार मंथन के लिए हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करेंगे कृपया मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अब हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी बैठे हैं। उनका सानिध्य सुलभ वो हमेशा मिलता है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन श्री जयराम रमेश जी। सामने कर लीजिए सर। थैंक यू। कैमरा तस्मात् कर्म प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। देवदेवोत्तमदेवता दयतातिथिम् आयुषेन् हव्या जुहोतानाम्। We have assembled here to hold this conference in this hall, which is named after the first Speaker of Lok Sabha, Shri G.V. Mavlankar. And it is only in fitness of things
that today this conference is being inaugurated by the Speaker of the Lok Sabha, Madam Speaker. Today, I stand here not because I am an MP, nor am I standing here in this hall in one of the houses of the Parliament. And therefore, I am sure I will not be in any way be held liable for any breach of privilege. More so because I am exercising my privilege to welcome you, Madam. Today, and since the day of Makar Sankranti, the huge Mela is being observed and being conducted at Allahabad. It is a classic example of sociology in action, and the dip at the holy confluence of the rivers only represents sanitation. So it is both. It is actually sociology in action. The Parliament is also a living example of sociology, of Indian way of life, Indian thinking, and sociology political. And the honorable members of the House take a dip in the river of democracy. Madam, you represent Parliament. Between Sulabh, the organizers of this conference, and yourself, there's so much in common. We wish to fulfill the want of the deprived, give space to those who are in the margins, and we wish to do all that we can for the underprivileged. Ma'am, and honorable ministers, and my friends in the audience, besides this, all that I have counted that is common between Sulabh and the Speaker, there is one basic difference, and that is, ma'am, while you deal with cut motions, adjournment motions, Sulabh deals with loose motions. Honorable Minister of Rural Development, it is said that when you welcome, you address a person by his name. Minister Sahib, give me the liberty of addressing you in the typical traditional Hindu way, Jai Jai Ramji. Whatever project that you have pursued, whatever portfolio that you have held, success has pursued you. Lady success pursuit has been persistent as far as their life is concerned. In the present day context, when it is being said that stalking is likely to be treated as an offence, Minister Sahib, I am sure you are not going to file an FIR against lady success. You have achieved a lot. As a student, you were reading Ghulam Medal's The Asian Drama. Today, as Minister, Rural Development, you are writing the drama of rural India. And I have taken delight in reading your articles and writings when you have done. पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि पहले तो हम नाथद्वारा टेम्पल गए थे 88 में, और जब लौट के आए तो माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने हम लोग को स्नेह प्यार दिया था। ये अलवर में हम लोग गए इनके यहाँ, जैसी परंपरा इनकी है, इनका क्या दोष रहेगा, जो हम लोग की परंपरा है।
तो जगन्नाथ मंदिर में अलवर के महिलाओं को जो उषा चौमर शामिल है जाने की मनाही थी, वहाँ कोई जाके पूजा नहीं कर सकता था। हम लोग गए, इनसे बातें की, तो थोड़ा तो पहले काफ़ी तैयार नहीं हुए, कैसे जाएंगे, तो आप आ जाइए, तो मैं तो उनके साथ हूँ, मैं अकेले आके क्या करूँगा। तो खैर वो लंबी बात छोड़ देते हैं, ये राजी हुए और फिर हम लोग मंदिर में प्रवेश किए, पूजा पाठ किए। उसके बाद जो इनका जो मन बदला उसके पुरस्कार दिया जा रहा है कि अब इनके मन बदलने का पुरस्कार है ये। उसके बाद इनकी लड़की की शादी हुई, लड़के की शादी हुई, तो उषा चौमर को और लोग को बुलाया, इनका गिफ्ट स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ इनको बैठा के खाना खिलाया। और आज ये पंडित जी बैठे रहते मंदिर के पास, आज जब जाती है सब उषा चौमर और लोग कि कहते हैं आओ एक कप चाय पी के जाओ, ये लोग कहते हैं आप पंडित जी अभी समय नहीं है हमारे पास में अब जल्दी छूट जा रहे हैं। आप आज देखिए कि बैठ करके चाय पिलाने के लिए ये तैयार रहते हैं। तो यही यहाँ के देश के ब्राह्मणों को करना, जाति की प्रथा तो चर्चा करना ठीक नहीं होता, फिर भी तो ब्राह्मणों को ही करना है। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तब तक छुआछूत समाप्त नहीं होगा, इसलिए पुरस्कार दिया जा रहा है बतिया। और मैं माननीय मीरा कुमार जी से, जयराम रमेश जी से निवेदन करूंगी कि पंडित जी को 5 लाख रुपए का ये पुरस्कार यहाँ सुलभ के मंच से प्रदान करें। यहाँ पर वाराणसी से आए हैं 10 पंडित, और वो यहाँ किस लिए आए हैं? वो यहाँ एक संकल्प लेने के लिए आए हैं, एक शपथ लेने के लिए आए हैं। और ये शपथ ये है कि हम सब जात पात के किसी बंधन को नहीं मानते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच या स्पृश्यता का कोई भाव हमारे साथ नहीं है। जयराम रमेश जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो एक शपथ दिलाएंगे। यहाँ वाराणसी से आए ये 10 पंडित। आपका नाम बोलिए ना। आज दिनांक 28 जनवरी 2013 को भारत के दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत इस सभागार में ये संकल्प करता हूँ, मैं अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं रखूंगा। मैं अनुसूचित जाति के घर आयोजित किसी भी पूजा पाठ और पुरस्चरण का अनुष्ठान या यज्ञ आचार या पुरोहित के रूप में उनके घर जाकर संपन्न कराऊंगा। पूजा के प्रसाद ग्रहण के साथ मैं स्वेच्छा से उनके घर उनके साथ बैठकर भोजन भी करूंगा। अपने घर में इस प्रकार के किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में भी लेकिन आज हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं, जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ सुलभ इंटरनेशनल की ऑनरेरी प्रेसिडेंट उषा चौमर जी की। मैं आमंत्रित करती हूँ उषा चौमर को, वो आए और हमें संबोधित करें। श्रीमती उषा चौमर।
माननीय अतिथिगण, आदरणीय संस्थापक सर एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे अच्छा लगता ही रहता है जब से सुलभ में आए, लेकिन खासतौर से मैडम जी आती हैं और हमारे जो मंत्री जी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मंत्री जी की आवाज़ में तो बहुत ही दम है। पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो मुझे दूसरी मुलाकात में तो संसद भवन में बुला लिया और मंत्री जी को मैं कई बार देखती हूँ टीवी पे। हमारे सच में कॉम्प्लेक्स के बारे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, शौचालय के बारे में, और सही बात है, वो समझते इस बात को। अब मेरी बात बताती हूँ आपको कि हम लोगों की तो पहले जिंदगी बेकार थी। मैं 7 साल की उम्र से एक मेला ढोने का काम शुरू किया और मैं क्या, मेरी सभी बहनें पढ़ पीढ़ी हमारा ये काम चलता आ रहा है। यही मेला ढोना शुरू किया था और यही कर रहे थे हम। अब सर आ गए हमारी जिंदगी में, पाठक सर्जन कहाँ से। हम तो समझ रहे थे कि हम तो ऐसे ही एक दिन, हमारे सभी बुजुर्ग चल बसे और वो भी चल बसते थे और हम भी एक दिन ऐसे गुजर जाते काम करते हुए। सर आए हमारे महापर अलवर में और पूछने लगे, भाई ये काम क्यों करती हो? हम पहले तो सोच रहे भाई बड़ा अजीब आदमी है, क्योंकि किसी ने पहली बार सवाल किया था इस काम का। तो सर ने पूछा ये काम क्यों करती हो? मैंने कहा सर हमारा तो यही सब काम करते हैं और कोई काम नहीं करने के लिए। तो सर ने ये काम हमसे छुड़वाया और वहाँ पर सभी सामान बनाते हैं, अचार पापड़ जबे, और जिनों के घर पहले मैं मेला साफ करने जाती थी, वो लोग इतनी दूर से चलते थे, बहुत दूर से, हमारी परछाई से बहुत दूर रहते थे। लेकिन आज वो मुझे शादी विवाह में सब जगह, आज हमारी जिंदगी बहुत अच्छी, आप देख रहे हो इतना बदलाव है। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज उषा तोमर। I am from Nai Disha Sulabh International Social Service Organization, Alwar, Rajasthan. Since March 2003, I was doing scavenging work and carrying night soil on my head. I remember a day when I was cleaning an enclosure and suddenly someone fell deadly on my hand. That is one incident I am unable to forget. I first used to accompany my mother and sister. At 14, I got married, but marriage did not bring any change in my life, same work which I used to do. Thank you. मैं क्या बोलूँ, मेरा आश्रम में जो बाबा दिया, तुलसी महाराज जी हमको जितना मदद करी, हम तो बहुत खुश हैं। फिर और भी आगे बढ़े ऐसी। सर पर मैला ढोने वाली औरतों को उनके नाटकीय जीवन से निकालना हो या फिर शौचालय की ये मुहिम, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हमारे साथ हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और प्रणेता। साझा करें डॉक्टर पाठक। एक बार पुनः माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी विधायक लोक सभा हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अनुरोध करते हैं माननीय श्री जयराम रमेश जी का, जो मंत्री है ग्रामीण विकास के। हम स्वागत करते हैं माननीय श्री भरत सिंह सोलंकी जी का, जो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। हम स्वागत करते हैं
प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे बुद्धिमान विद्वान इस देश में हैं और इनके बड़े शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग उनको आगे प्रणाम किया और इनसे आशीर्वाद लिया। माननीय श्री पाठक साहब जी का, स्पेशल जी का, उषा चौहान जी का, मानस घोष का, उपाध्याय का, जितने समाजशास्त्री यहाँ आए हैं, सारे देश से आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए हैं, और जो मीडिया के लोग हैं जो आए हुए हैं, जो अलबर्ट टॉक से उषा की बहनें आई हुई हैं, जो हम राजकुमारियाँ कहते हैं, वृंदावन से जो विडोज आई हुई हैं, और अभी आप लंच में मिलेंगे आरा और दिल्ली के बगल में गाजियाबाद के उन महिलाओं से जिनको मुक्ति दिला दी गई है, लेकिन नीली साड़ी उनको नहीं मिली है। आज उनको नीली साड़ी भी दिया जाएगा और आज से वो भी उषा के साथ मुक्त हो जाएंगे और समाज के विकास की जाएगी। समय एकदम कम है, इसलिए मैं बहुत सी बातों का जिक्र करना नहीं चाहूँगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए हमने आपसे अनुरोध किया आने के लिए, और आपने इतने कम समय में आने की कृपा की है, इसलिए कुछ बिंदुओं का रखना जरूरी है। बाकी हम जो टेक्निकल सेशन होगा उसमें हम इस बात को रखेंगे। सैनिटेशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। 1960 के दशक में जब मैं इस काम में आया था, उस समय गांव के किसी घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। स्कूल में शौचालय नहीं होता था। 4 स्कूल में मैंने अध्ययन किया, चारों स्कूल में शौचालय नहीं था, और उसमें सिर्फ 23 शहर ही इस देश में ऐसे थे जहाँ की पार्शियल सीवर लगा हुआ था। 85% से अधिक लोग कमाऊ शौचालय का इस्तेमाल करते थे, और उषा चौहान ऐसे लोग उसको साफ करते थे। एक अमानवीय प्रथा देश में चल रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो अब इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि सारे लोग, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, यूनाइटेड नेशंस, दुनिया के अन्य देश, सारे लोग अब शौचालय की चर्चा कर रहे हैं, स्वच्छता की चर्चा कर रहे हैं। माननीय श्री जवाहरलाल जी ने मुझे बताया था कि ये शायद इसके पहले लोकसभा में 3 बार सैनिटेशन शब्द का प्रयोग हुआ। तो पहली बार लोकसभा में 3 बार सैनिटेशन शब्द का प्रयोग हुआ था। उसके पहले वाटर का होता था, हेल्थ का होता था, सैनिटेशन का नहीं होता था। तो ये कितना महत्व पकड़ता जा रहा है, इसी बात से इंगित करता है कि पार्लियामेंट भी अब कंसर्न है इस बात से कि स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये हुई जब दुनिया के गिने गिने धनियों में एक हैं बिल गेट्स, और यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि शौचालय मेरा सपना। तो मुझे लगा कि भाई 1968 में जब मैं जाता था बिहार में लोगों से बातें करने के लिए, तो लोग मना करते थे कि आप शौचालय की बात मत करिए, बल्कि कुछ जो करना कर लीजिए। मैं कहता था कि मुझे यही बात करनी है, और उसको आज करीब 44-45 वर्ष के बाद आज दुनिया का एक धनी व्यक्ति कहता है कि शौचालय मेरा सब एक्सरसाइज होगा, असेंबली होगा, टूल्स होगा। तो ये टूल्स क्या होगा? तो शौचालय जो है, टॉयलेट को हमने टूल बनाया, क्योंकि सीवर लाइन है, इसकी चर्चा मंत्रीगण करेंगे अपने भाषण में। तो सीवर से संभव नहीं था, संभव नहीं है, तो हमने सुलभ शौचालय का आविष्कार किया। और सुलभ शौचालय जो है हम कहते हैं ये टूल ऑफ सोशल चेंज। टॉयलेट इज ए टूल ऑफ सोशल चेंज। और जैसे गांधी का चरखा था, आजादी के का जो सिंबल था, लड़ाई का टूल था, स्पिनिंग जेनी, यूरोप का जो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बीच में पीछे टूल क्या था? स्पिनिंग जेनी।
तो सुलभ शौचालय को हमने टूल इस्तेमाल किया। इसका मैंने किया है, इसकी जानकारी कम लोगों की है। इसका इस्तेमाल राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, वो संस्थाएं जितनी हैं राष्ट्रीय वो भी करते हैं, और सारे दुनिया में ये तकनीक गया है। तो हिंदी में एक है, सत सैया के दोहरे अरुण नावक के तीर, देखकर में छूटने लगे घाव करे बजम के। तो ये टॉयलेट जो है इतना बड़ा परिवर्तन ला देगा समाज में, जो आप लोग यहाँ आके बैठे हैं विचार करने के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाजशास्त्री, तो वो टूल ऐसा साबित हुआ इसके लिए, सोशल चेंज के लिए। जो एक तरफ खुला शौचालय बन गया, सरकार कानून बना रही है शौचालय तोड़ दो। अरे भैया शौचालय तोड़ दोगे तो हंगामा हो जाएगा, उससे अच्छा शौचालय बना दो इसका। हम लोगों ने क्या किए, 12 लाख शौचालय बनाए और 1,20,000 इसका बिजनेस को फ्री कर दिया, बात खत्म हो गई। तो दोनों तरफ हो गया, उसका पैखाना भी बन गया और फ्री भी हो गया वो। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने उस टूल इस्तेमाल किया। अब सोशियोलॉजी के आप लोग हैं। तीसरी बात हमने की, जो गांधी का नॉन वायलेंस है उसका को अपनाना, हमने टूल्स को अपनाना। हमने क्योंकि अपर कास्ट के लोग जिनका सोशल ऑर्डर है, उस सोशल ऑर्डर के लोगों को अपने साथ लाना था, इसलिए हमने अपर कास्ट के खिलाफ कोई बातें नहीं की। न हम किताब फाड़े, न पुराण, न वेद, न अनुस्मृति, कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ इन महिलाओं को जो आपके सामने देखा 70 साल बैठी है, इनको क्या किया हमने, इस काम से निकाला और पहले पढ़ाना शुरू कर दिया। एजुकेशन इज द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले पढ़ाना शुरू कर दिया उनका हमने। फिर रोजगार कैसे कमाए वो देखा हमने, फिर हमने वो हमने सिखाया उनको, पापड़ अचार नूडल फेशियल ये सब बनाने के सिखाया करने का। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्वाइस बोर्ड का कंसेप्ट है, रेखा समाज शास्त्र पढ़ाई दूसरी होती होगी, दूसरे संस्कार का, तो ट्वाइस बोर्ड का जो कंसेप्ट है वो हमने इनको दिया। मंदिर ले जाना, पूजा कराना, गंगा में स्नान कराना, इस सारे के सारे जो देखा आपने वाराणसी में जब ब्राह्मणों ने खाना खाया तो पंडित ब्राह्मण से आए हुए ब्राह्मण के सबका आश्चर्य हुआ कि काशी में ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं। तो ये हमने क्या किया कि समाज में परिवर्तन जो लाया उसमें कहीं हमने अभिमान नहीं किया, कोई वायलेंस नहीं किया, एजिटेट नहीं किया, एक बड़े शांत तरीके से ला दिया। और आज स्थिति ये है, ये महिलाएं बैठी हैं, बाद मिलेंगी आपसे, आप पूछिएगा अपने से कि अल्बर्ट टॉक में अब छुआछूत का नाम कोई चीज ही नहीं है। जो विश्वास नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कभी। जाति था, माननीय श्रीमती कुमार ने एक बार कहा था एक फंक्शन में कि जाति प्रथा जाएगी, ऐसा मैंने सोचा भी कभी था देश से। तो वो जाके आप देखिए वहां जाति प्रथा है ही नहीं है, और छुआछूत बदलते तो है, छुआछूत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कैसे उनको हमने समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया। गांधी का ही सपना था, गांधी का सपना था कि उनको इस काम से निकालो, इनको शिक्षा रोजगार दो और समाज की बुझार से जोड़ दो। और उसमें गांधी कल्पना की थी कि भाई शायद सबसे अधिक बड़ा पोस्ट था, उनकी प्रतिष्ठा हो। गांधी ने कहा था एक महिला स्कैवेंजर्स को राष्ट्रपति होना चाहिए। मैंने कहा राष्ट्रपति बनाने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन उषा चंबल को हमने सुलभ का प्रेसिडेंट बना दिया। अब सुलभ प्रेसिडेंट आज उषा चंबल है। तो जो कर सकते हैं आप, हम इन बातों को इसलिए बता रहे हैं कि समाज शास्त्रियों को हमने 1885 में 1985 में हमने कंसेप्ट दिया था एक्शन सोशियोलॉजी। क्या समझे उसको कुछ कर रहा है, तो पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहा कि पैखाना से टिंचर सालिभा को अलग कर रहे हैं ताकि आई कैन ब्रिंग बैक एज ए फूड। तो एज ए फूड तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन जो किया है अब देखेंगे किस प्रकार से हमने इसको किया है। और ये किताब सब लोग पढ़े ही होंगे, सुमाकर की किताब है। ये कहता है, ये जो बात हम 2 लाइन सुना देते हैं आपको। What is that will require from the scientists and technologists? I should answer. We need methods and equipments which are cheap enough so that they are accessible to virtually everyone.
suitable for small-scale application and compatible with man's need for creativity. उसी गांधी ने कहा, this was a practical of Gandhi. I want the dumb millions of our land to be healthy and happy. तो ये हम इसको छोड़ दे रहे हैं, तो ये किताबें देंगे हम. तो ये कहने का मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजी कैसी हो, ये देश के सरकार को सोचना पड़ेगा. गांधी पर आपको वापस आना पड़ेगा. ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सिंपल हो, सब लोग कर सकता है, जो आपकी कर सकते हैं. और आपका आश्चर्य होगा, हितकर छात्र नीट का पढ़े थे तब समाजशास्त्र में आए, हम तो पढ़े नहीं थे. लेकिन सिर्फ ये किताब 1958 पब्लिकेशन है, और इस किताब को पढ़ करके कोई व्यक्ति, एक समाजशास्त्री इतना बड़ा परिवर्तन समाज ला सकता है, विश्वास नहीं होगा. एक किताब है स्कीटर डिस्पोजल फॉर रूरल एरियाज एंड स्मॉल कम्युनिटीज. ये पब्लिकेशन WHO की. थोड़ा हमने पढ़ा था इससे ही हमें लिया, बल्कि तो हमने अपना किया, थोड़ा सा इस रेफरेंस लिया था. तो ये किताब आजाद कर सकते हैं ज्ञान का महत्व कितना है. आप सोचते होंगे पाठक जी का क्या सुझाव है, ये समाजशास्त्री को कहते हैं शौचालय पढ़ाओ, पानी पढ़ाओ, हाइजीन पढ़ाओ, क्या हो गया इनको. तो हम ये हो गया है कि देखिए ये किताब जो है इस देश में और देश में नहीं, दुनिया के जो 2.6 बिलियन लोग हैं जिनके घर शौचालय नहीं है, वो सुलभ शौचालय ही आज न कल उसका समाधान निकाल पाएगा. इसलिए समाजशास्त्री जितने लोग आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करेंगे तकनीकी सत्र में, और इसको सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन शुड बी वन ऑफ द डिसिप्लिन्स इन सोशियोलॉजी. I request all of you to consider this proposal. I thank all the persons here. From my side, thanks से बात दिया जाएगा सभी लोगों का. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी. और अब की नोट एड्रेस के लिए मैं आमंत्रित करूंगी जाने माने समाजशास्त्री और JNU के एमरिट्स प्रोफेसर योगेंद्र सिंह. Honorable Srimati Gila Kumarji, Ministers, Jairam Ganesh, Solanki, Dr. Pathak, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am very happy to have this occasion of participating in this very meaningful seminar. I know that sociologists from all parts of our country have assembled here. I convey to them my very best wishes, and it is rather intrusive that they are taking interest into an area of most crucial and rather compelling interest in which sociologists should evince some kind of a disciplinary response. Time at my disposal is very brief, very short. Therefore, I will not, it is not in the nature of a keynote address. It will be only a mere intervention on one or two themes to which the sociology of sanitation is related. It was very kind of Dr. Pathak to make most of his publications available to me. I went through them, and I commend the kind of Richard Johnson to go into this issue. So they wanted to identify a sociologist who came from a country where there was no racism, where there was equality, partnership of citizens and freedom. Of course, Finland is no longer the same nation today. It has problems. But at that time, Gunnar Myrdal, Sweden, he was invited and he proceeded with his study. So, studying the problem of racism and how to have a breakthrough of solving the problem of racism
Milton went into all aspects of race and racial composition, family life, their style of life, food habits, environmental challenges, educational background, unemployment, poverty, income, all the whole range of factors. And he came to this conclusion that if we have to make a breakthrough, then we have to select a crucial factor, a strategic factor, from which what he called later on cumulative causation would set into motion. It will lead to positive results, it will lead to negative factors, which he called the spread effect and backwash effect. So with the use of these categories, he offered some kind of a theoretical model. This model, of course, he applied it to India, Asian countries, Asian drama. Well, when we look at Mendel's contribution, it has succeeded and been meaningful, but it has also failed. When it comes to the analysis of the Indian situation, cumulative causation really is not able to emerge as a systemic theoretical response to the kind of challenges that India faces in its development along several lines. One very important difference between American situation and the Indian situation is that India is a country of diversity and very ancient civilization in which each variable, each factor is interlocked with the other factor in such a manner that it is very difficult to isolate it. Secondly, comparability is very difficult. Therefore, what is needed is to innovate upon and modify such theories. Interlocking of the relationships between, say, problem of removal of stigma of untouchability, and after this removal, identification of the crucial factors which led to the breakthrough should be used as a tool, as a conceptual tool, to develop a theory in which many other variables which impinge upon problems of environment, problems of deprivation, problems of gender inequality, etc. are related. I think comparability of studies is most important, because the study of one problem, say gender discrimination, poverty is too broad, say the problem of the environmental solution, say the problem of technology, how it affects. Take for instance technology. Take for instance the problem of sustainable development and environment. On these issues, technology has a flexibility. Club of Rome long back in the 60s, around 60s, came out with a statement that resources of the globe are limited and they will exhaust very soon. So pace of industrialization which consumes raw material has to be constant, limited, circumscribed. But technology, larger sociology is possible. It may follow any one of these traditions already established, but most primarily it has to be Indianized. Because none of the theories, to my mind, about which we have spent a whole lifetime studying them, analyzing them, teaching them, writing about them. बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री श्री भरत सिंह माधव सिंह सोलंकी साहब को कि वो आए और आज के विषय पर अपने विचार।
Madam Speaker, Lok Sabha, respected Meera Kumar ji, Union Cabinet Minister, Honorable Jairam Ramesh ji, Honorable Dr. Bindeshwar Pathak ji, Shri Yogendra Singh ji, Srimati Amola Pathak, Usha Chaumar, Shri Arun Pathak ji, Manu Ghosh ji, SP Singh ji, socialists from all over and friends from media. I am pleased to be among this morning in the workshop of Sociology, Sanitation, Environmental Sanitation, Public Health and Deprivation. Such workshops are very important as they stimulate various sections of our people to improve sanitation, health, environment, and the most important aspect, to help liberate scavenging system from the country. I am thankful to the organizers, particularly Dr. Bindeshwar Pathak ji, who has many achievements to his credit in the field of sanitation in India and abroad. The availability of safe sanitation system is one of the important factors to gauge socio-economic and cultural development of any country. Safe disposal of human waste has been a matter of concern since early civilization in different parts of the world. In Vedas, it has been made very clear that driving away disease and building human strength is definitely not possible without proper sanitation and adoption of hygiene rules. However, today major part of the population of this region lack basic sanitation facility and opts for open defecation. Sanitary household toilet is most important aspect of sanitation. According to a study of the World Bank, the total economic impact of inadequate sanitation in India is estimated to be rupees 2.44 trillion a year, which is equivalent to 6.4% of GDP in year 2006. It is accepted fact that poor pay more directly and indirectly due to bad sanitation. Most of them who can earn on daily wages basis lose out in case of illness due to bad sanitation. Further, other members of the family who look after the sick member also lose their daily earnings or schooling in case of children. Open defecation has been a deep-rooted age and old socially inherited behavior in rural India. Provision of adequate sanitation coverage in rural India still remains a major challenge, despite rising incomes and advent of new and more cost-effective technologies due to various mindsets. Hence, even though India may be growing towards being a superpower and a recognized leader in information and technology and nuclear science, and substantial proportion of the rural poor still defecate in open, rather than investing on sanitary toilets, since sanitation is neither a felt need nor open defecation is a socio-cultural taboo. This set of population would rather prefer to purchase a mobile phone than invest in a toilet. India is considered as a growing economic power of the world. On one hand, in many fields, its progress in recent years have been remarkable, comparable to any developed nations. While on the other hand, it is estimated that well over 600 million Indians continue to lack access to even the most basic sanitation facilities of the waste water treatment in rural areas. Suitable technologies are required to make the system self-sustainable. There could be technologies having direct economic return from the wastewater treatment and solid waste management in rural areas. Techno entrepreneurs and NGOs are requested to come up with such technologies for rural areas. Improvement of sanitation is socio-technical issue.
required impact of sanitation and waste management can be achieved through social mobilization, supported by socio-culturally acceptable, economically affordable technology. I once again thank the organization for organizing this workshop and hope the deliberation of the workshop will provide new and workable thoughts to improve environmental sanitation and liberation of scavengers from the human practice of cleaning and carrying the night soil. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें। लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार जी, मेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री भरत सिंह सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, इस विषय पर जो कुछ बोलना चाहिए था अभी तक बोल चुके हैं सब लोग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ स्पीकर का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक विधेयक अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया है। ये एक नया कानून का प्रस्ताव दिया गया है महिला ढोने की प्रथा से और सख्ती से निपटने के लिए, क्योंकि जो कानून हमने 1993 में बनाया था, अभी बिल्कुल साफ हो गया है कि वो कानून से जो नतीजे हम चाहते थे वो नहीं निकले। इसीलिए ये नया कानून का जो बिल जो है अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया था, और मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो अपने पद का प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करें ताकि आने वाले बजट सत्र में वो नया कानून बन पाएगा। ये कानून इसके महत्व रखता है क्योंकि हमारे देश में आज भी 25-26 लाख शुष्क शौचालय हैं। हर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हमने मैला ढोने की प्रथा को बंद कर दिया है, पर हकीकत और कुछ चीज़ है। और जब 2011 की जनगणना निकली, वो जनगणना ने साबित कर लिया कि हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जैसा कि मैंने कहा, कुल 26 लाख शुष्क शौचालय। इन शुष्क शौचालयों को सुलभ जैसे शौचालयों में बदलना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और ये कानून में प्रावधान किया गया है कि 1 साल के अंदर सभी शुष्क शौचालय बंद किए जाएंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कानून का एक अलग महत्व है, और मैं स्पीकर जी से यही गुजारिश करूँगा कि वो पूरा प्रयास करें। वो प्रयास तो करती रहती हैं, पर सांसद अक्सर उनकी बात मानते नहीं हैं। आपने टीवी पर देखा होगा, वो खड़ी होकर चिल्लाती हैं, नाराज़गी दिखाती हैं, कभी कभी उठकर चली भी जाती हैं, फिर भी सांसद लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। पर इस कानून के संदर्भ में मैं समझता हूँ सभी पार्टियों में एक आम सहमति बनी हुई है, और अगर हम संकल्प करें तो अगले 2-3 महीने में हम इस बिल को जरूर पास कर पाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रालय की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह के लिए एक नया फ्लैगशिप कार्यक्रम आजीविका पिछले साल शुरुआत की थी। इससे हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में खास तौर से हर एक गरीब परिवार की एक महिला को महिला स्वयं सहायता समूह या महिला बचत समूह का सदस्य बनाने का मकसद रखा गया है, और इन महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने का आपके साथ जो सलूक किया है उससे हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। आपकी गरिमा, आपका आदर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और
यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिष्ठित समाजशास्त्री, और सम्मानित भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को कि वो निरंतर मुझे सुलभ के कार्यक्रमों से जोड़े रखते हैं। मैं अभी उन्हें कह रही थी कि मैं आपकी अनुग्रहित हूँ, क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र कुछ और है और मेरी आत्मा यहाँ बसती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शांतिपूर्ण तरीके से इतनी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। मैंने सोचा था शायद ये तब संभव होगा जब हम न होंगे, लेकिन हमारे जीवन काल में ही ये संभव हुआ दिखता है। इसके लिए मैं बिंदेश्वर पाठक जी, आपका और पूरे सुलभ की इस टीम की जितनी प्रशंसा करूं कम है। आज का जो विषय है, इस विषय पर इससे पहले मैंने कभी कोई व्याख्यान नहीं दिया है, क्योंकि ऐसा विषय कभी मेरे सामने आया ही नहीं था। बहुत ही समसामयिक विषय है, सोचने के लिए प्रेरित भी करता है और विवश भी करता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, संतोष की, कि इस सोचने की प्रक्रिया में हमारे साथ लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं। में कलकत्ता में पहली बार मल प्रबंधन व्यवस्था शुरू की गई, सीवेज सिस्टम शुरू किया गया, और तब से लेकर आज 2013 तक एक लंबी यात्रा है। समय के परिधि में 143 वर्ष के इस अंतराल में हमारे यहाँ जो 7,933 शहर हैं, उनमें से केवल 160 शहरों में ही सीवेज व्यवस्था आज तक लग पाई है। आज भी 7,773 ऐसे शहर हैं जहां पर मल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इस समझ से ये गंदगी इसलिए है क्योंकि हमने अपने यहाँ जाति व्यवस्था बनाई और उस जाति व्यवस्था में एक विशेष जाति को सफाई करने की जिम्मेदारी दे दी, और हम सब उस सफाई करने की जिम्मेदारी से बरी हो गए। हमारा काम हो गया गंदगी फैलाना, ये सोच करके
कि एक जाति को हमने तो ये जिम्मेदारी दी हुई है, हम गंदगी फैलाते जाएं, वो गंदगी साफ करते जाएं। हमने इसके बारे में सोचा कि हमारे देश में गुलाम प्रथा क्यों नहीं विकसित हुई। बहुत जगह हमने देखा है गुलाम प्रथा है, बहुत जगह उधर अमेरिका में देखिए तो गुलाम प्रथा चली आई, बहुत दिनों तक चली आई, सब जगह जहाँ जाए गुलाम प्रथा है, दास प्रथा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई दास प्रथा? हमारे यहाँ दास प्रथा इसलिए नहीं हुई, गुलाम को तो फिर भी आज़ाद हो जाने की का मौका मिल जाता है, मगर हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें इतनी जबरदस्त जकड़न है कि आज़ादी मिल ही नहीं सकती। तो फिर जिसको आप गंदगी साफ करने का काम दे देते हैं, जिसको आप जो अवांछित कार्य है, जिसको आप नहीं करना चाहते, मोस्ट अनडिजायरेबल, डेस्पिकेबल, वो उसको दे देते हैं और उसको इस तरह से जकड़ देते हैं उस जाति प्रथा में कि वो कभी भी उससे मुक्ति नहीं पा सकता है। गुलामी से तो आज़ादी मिल जाती है हमारे यहाँ ही। अब वो इतिहासकार जानते हैं कि किस तरह से यहाँ स्लेव डायनेस्टी बनी। शमसुद्दीन अल्तमश स्लेव डायनेस्टी के थे, गुलाम वंश ने यहाँ राज किया है दिल्ली की गद्दी पर। उन्हीं की वो दुख्तरे अल्तमश रजिया सुल्तान उन्हीं की बेटी थी ना। तो गुलाम वंश के लोग, गुलाम जो थे वो आज़ाद हो जाते थे, मगर जाति प्रथा जैसे फांसी का फंदा होता है ऐसे जकड़ के रख देती है आपको, न सांस अंदर जाती है न सांस बाहर आती है। तो इन लोगों को मिल गया सफाई का काम। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे जापान, तो वहाँ की सड़कें बड़ी चमचमाती हुई, सभी कुछ चमचमाता हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने जाति व्यवस्था बना करके किसी एक जाति को इस सफाई का काम नहीं सौंपा है, सब इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ की जो गृहिणी है जब घर साफ करती है तो फिर बाहर निकल करके सड़क पर कूड़ा नहीं रखती, बल्कि अपने घर के बाहर जो सड़क का हिस्सा है उसे भी साफ करती है। हमने तो उसे कभी अपनी जिम्मेदारी माना नहीं। अभी टीवी पर मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, अब मैं नाम नहीं बताऊंगी किस विश्वविद्यालय का, मगर एक विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, एक विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, तो मैंने टेलीविजन पर मैं देख रही थी उसे। तो जब चुनाव हो गया तो उन लोगों ने दिखाया कि कॉलेज का क्या नज़ारा है। तो जिसको वो मिला था मत का पर्चा, वोट का पर्चा जिसको मिला था, वोट डालने के बाद उन लोगों ने वहीं पूरा उस कॉलेज का जो ग्राउंड है वो भरा हुआ था कागज से। और मैं सोच रही थी कि ये तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सफाई के इनके ज्ञान के बारे में क्या हुआ? क्या ये भी सोचते हैं कि जिस विशेष जाति को सफाई का काम दिया गया है वो आकर सफाई करें, हम क्यों करें? तो जो पढ़ा लिखा तबका है पर चर्चा हो रही थी। तो जब चर्चा शुरू हुई तो कुछ सदस्य जाने लगे, मैंने कहा मत जाइए, बैठे रहिए। आज तो ये पूरा सदन भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि समाज में जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत थे आज उनका आदर ये सदन कर रहा है। इसी में सदन का वैभव है,
इसी में सदन की आभा है, इसी में सदन का प्रकाश और कांति है। तो ये संसद तो क्रांति का उद्घोष करने के लिए बना है। अगर संसद क्रांति का उद्घोष नहीं करेगा तो फिर क्रांतियां सड़क पर होने लगेंगी और हो सकता है वो क्रांतियां रक्त रंजित हो जाएं। इसलिए समय को पहचानते हुए सदन को ही क्रांति लाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। तो आपने मुझे बुलाया, मैं आपके अनुरोध हूँ। ऐसे मौके आते हैं तो दिल में जितने उद्गार हैं वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि हम पहले व्यक्त होंगे, हम पहले व्यक्त होंगे, और कई उद्गार छूट जाते हैं क्योंकि समय का प्रतिबंध, समय का बंधन रहता है। तो फिर आप बुलाएंगे तो जो छूट गए हैं उन्हें व्यक्त करेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज की विडंबनाओं और विरोधाभासों की तरफ बहुत ही सशक्त तरीके से इशारा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुलभ इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री SP सिंह साहब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। इसके पहले कि मैं आदेशानुसार आपको धन्यवाद ज्ञापन करूं, मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ यदि इस मीटिंग की जरूरत क्या थी? क्यों हिंदुस्तान भर के सोशियोलॉजिस्ट और यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, इनको ये मत समझिए कि पॉलिटिशियंस हैं या इंटेलेक्चुअल हैं या और कुछ हैं, बड़े कामयाब आदमी हैं इसलिए इनको बुला लिया जाए, ये नेता हैं, ये करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, काम देंगे। इनकी सबसे बड़ी परिभाषा ये है, ये अच्छे लोग हैं। ये हिंदुस्तान के गरीबों की तकलीफ जानते हैं, इन्होंने जिंदगी के उस दौर से गुजरा है जिसमें गरीबी है, मजबूरी। मित्रों, हिंदुस्तान के इतने लोग सोशियोलॉजिस्ट, पढ़े लिखे आदमी, समाजशास्त्री, नेता इस जगह बैठे इसलिए हैं, क्या डिस्कस करने के लिए? शौचालय, पैखाना किसी कॉन्फ्रेंस का कभी समस्या की सब्जेक्ट नहीं हुआ, इसलिए कि शौचालय और सफाई जो है वो पैसे का सवाल नहीं है। अगर पैसे का सवाल होता तो हमको मिनिस्टर साहब पैसे देने को तैयार थे। कानून का सवाल था, दुनिया भर के कानून बने हुए हैं। यहाँ तक अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया कि अगर किसी आदमी को आप तालाब में पानी से रोकिएगा तो आपको सजा मिलेगी। नहीं हुआ, आप क्या करिएगा? दुनिया की सारी समस्या, सारी खुराफात दिमाग से शुरू है, लड़ाई, झगड़ा। अब सवाल ये यहाँ के जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं सब जुटे हुए हैं उस समस्या को उस जगह पर समाधान करने के लिए कि जहाँ पे शुरू हुई वो है दिमाग, सोच बदलने की, माइंडसेट बदलने की। हम सोचते हैं हम लोग महाराज का इजाजत लेके आप सबसे नमस्कार।